صبح کی اذان ابھی ہونا شروع ہی ہوئی تھی کہ زارا کی آنکھ کھل گئی۔ سرحا نے رکھی گھڑی 6 بجا رہی تھی، مگر اس کی دل کی دھڑکن کچھ زیادہ ہی تیز تھی۔ آج اس کا پہلا انٹرویو تھا، زندگی کا پہلا انٹرویو۔ وہ آہستہ سے بستر سے اٹھی، نماز ادا کی اور کچن کی طرف آئی۔ کچن سے آتی بھابھی کی آواز نے وہی اس کے قدم روک لیے۔ ابھی تک سو رہی ہو کلمو کی؟ بھابھی کی آواز میں کرواہٹ گھلی ہوئی تھی۔ السلام علیکم۔ وہ آگے بڑھی تو بھابھی چپ ہو گئی۔ اتنی جلدی اٹھ گئی؟ ہائے، ان کی منافقت۔ بھابھی کی بات پر زارا نے حیرانی سے سوچا۔ جی، آج میرا انٹرویو ہے، اس لیے اس نے مختصر سا جواب دیا۔ اچھا، نوکری ایسے نہیں ملتی جیسے سڑک پر گرے سکے اٹھانا، محنت کرنی پڑتی ہے۔ محنت؟ ان کی کڑوی باتوں نے زارا کا رنگ بدل دیا۔ زارا نے جواب دینا چاہا مگر الفاظ حلق میں ہی رک گئے۔ اس نے خاموشی کو ہی اپنا ہتھیار بنایا۔ ناشتہ ٹیبل پر رکھا، اسے 2 نوالے زبردستی حلق سے اتارے۔ چائے کی چسکی میں بھی تلخی گڑی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ شاید بھابھی کے لفظوں کا اثر تھا۔ وہ گھر سے نکلی تو بھابھی کی آواز نے اس کے قدم زنجیر کیے۔ جلدی آ جانا، اور ہاں، امیدیں کم رکھنا۔ زارا نے پرس مضبوطی سے تھاما، آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک لیے وہ دروازے سے باہر نکل آئی۔ باہر کی ٹھنڈی ہوا نے اس کے بھوجل دل کو ذرا سا سہارا دیا۔ بس اسٹاپ تک جاتے اس نے خود سے سرگوشی کی، ہمت رکھو زارا، شاید آج تمہارا دن ہو۔ وہ بے بسی سے مسکرائی۔ بس دیر سے شیشے کی عمارت کے سامنے اتارا۔ آفس کی عمارت شیشے کی طرح چمک رہی تھی۔ اندر داخل ہوتے ایک باوقار سی خاموشی نے اسے گھیر لیا۔ ریسیپشن سے انٹرویو کا نمبر لے کر وہ ویٹنگ ایریا میں بیٹھ گئی۔ وہ نظریں جھکائے بیٹھی تھی کہ اچانک اس کے سامنے 2 ننھی سی پرچھائیاں گزری۔ اسے چونک کر دیکھا۔ 2-4 سال کی جڑواں بچیاں، ایک جیسی معصوم آنکھیں، ایک جیسی گلابی فراک، وہ آپس میں سرگوشی کر رہی تھی۔ کبھی ہنس کر زارا کو دیکھتی، کبھی ایک دوسرے کے کان میں کچھ کہتی۔ زارا کے ہونٹوں پر انہیں دیکھ کر بے اختیار مسکراہٹ سی آ گئی تھی، آنکھوں میں نمی جھلک اٹھی تھی۔ اسے ذرا سا ہاتھ ہلایا تو دونوں نے آنکھوں میں شرارت بھرا اشارہ کیا۔ اگلے ہی لمحے وہ دونوں مما مما کہہ کر آگے بڑھی تھی۔ 2 آوازیں ایک ساتھ پورے کوریڈور میں گونجی تھی۔ اس سے پہلے کہ زارا کچھ سمجھ پاتی، دونوں بچیاں دوڑ کر اس سے لپٹ گئی۔ اس نے اس کی ٹانگوں کو جکڑ لیا، دوسری نے اس کے گلے میں بازو ڈال لیا۔ زارا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ ارے، آپ دونوں؟ وہ ہکلا گئی۔ بچیاں ہنس رہی تھی جیسے یہ سب کسی کھیل کا حصہ ہو۔ وہ اسے ہاتھ سے پکڑ کر کھینچنے لگی۔ ماما، ادھر آؤ نا۔ زارا گھبرا گئی مگر بچوں کے اصرار اور معصوم طاقت کے آگے وہ تقریباً گھسیٹتی ہوئی ان کے ساتھ چل پڑی۔ دروازہ کھلا تو ایک بڑے کانفرنس روم کا منظر سامنے تھا۔ لمبی میز پر سنجیدہ چہرے اور سربراہی کرسی پر بیٹھا 35 برس کا شخص انہیں کچھ ہدایت دے رہا تھا۔ وہ یقیناً باس تھا، جس کی آواز میں اختیار جھلک رہا تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ کوئی اہم میٹنگ چل رہی ہے۔ دروازہ کھلتے ہی سب کی نظر اٹھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ باس کی گرجدار آواز کمرے میں گول اٹھی۔ بچیاں اس کے پیچھے چھپ گئی۔ زارا کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ سر، مجھے معاف کیجیے گا، میں اس کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ آپ کو تمیز نہیں ہے؟ وہ مزید برہم ہو گیا۔ میٹنگ کے دوران یوں اندر آنا، سیکیورٹی کہاں ہے؟ زارا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ کچھ کہہ نہ سکی، بس نظریں جھکا کر پیچھے مڑی اور تیز قدموں سے باہر نکل آئی۔ دل ٹوٹ سا گیا۔ اسے لگا جیسے اس کی ساری محنت، ساری امیدیں اسی کمرے میں دفن ہو گئی ہے۔ وہ روتی ہوئی دروازے کے پاس پہنچی تھی کہ ریسیپشنسٹ نے تیزی سے باس کے کمرے کی طرف گئی۔ چند لمحوں بعد باس زہران ملک باہر آیا۔ اس کے چہرے پر اب سختی نہیں تھی۔ رکیے، اس نے زارا کو آواز دی۔ زارا ٹھٹک گئی۔ سر، وہ لڑکی انٹرویو دیے بغیر واپس جا رہی اور وہ ہچکچائی۔ شرارت تو آپ کی بیٹیوں نے کی تھی۔ زہران ملک کے چہرے پر شرمندگی کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے گہری سانس لی، پھر زارا کی طرف دیکھا۔ مجھے افسوس ہے۔ اس کی آواز نرم تھی۔ میں نے بغیر سنے فیصلہ کر لیا، پلیز واپس آئیے، انٹرویو دیجیے۔ زارا نے حیرانی سے اسے دیکھا، پھر آنسو پوچھے۔ دل اب بھی دھڑک رہا تھا مگر کہیں نہ کہیں ایک ننھی سی امید دوبارہ جاگ اٹھی تھی۔ اور ہاں، اب غلطی کا خمیازہ تو بھگتنا ہی ہے۔ باس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ اس لیے ہماری کمپنی آپ کو ہائر کر رہی ہے۔ زارا کے لبوں پر بے یقینی اور شکر گزاری کے بیچ ایک مسکراہٹ بکھر گئی۔ شاید واقعی
आज उसका दिन था। उसे ऑफिस आए एक हफ्ता गुजर चुका था। वो अपने केबिन में बैठी फाइल पर झुकी कोई काम कर रही थी कि तभी दराम से आवाज आई। उसे चौंक कर सर उठाकर देखा। चाय का कप नीचे गिर चुका था और चाय फैल चुकी थी। ज़ारा जो काम में इंतहाई मसरूफ थी, उसके माथे पर बल पड़े। उसने नजरें उठाकर सामने देखा तो वो दोनों जुड़वा बहनें आज भी सेम फ्रॉक पहने बालों की पोनी बनाए उसे खौफजदा निगाहों से दिख रही थी। ज़ारा ने अपना सर झटका और पास रखे टिश्यू बॉक्स से टिश्यू पेपर निकालकर नीचे झुककर चाय साफ की और फिर खाली कप की तरफ देखा जो उसके मुंह को चुरा रहा था। लगता है आज तुमने मम्मा पार्ट 2 को फिर से नाराज कर दिया है। देखा, उन्होंने हमें डांटा भी नहीं और मुंह बना लिया। एक ने दूसरे के कान में सरगोशी नुमा अंदाज में कहा तो ज़ारा के होंठों पर मुस्कुराहट बिखर गई, लेकिन वो खामोश रही। उसने अपनी नजरें स्क्रीन पर जमाए रखी। अभी सॉरी करना तो बनता है ना। एक काम करो, चुपके से सॉरी करते हैं और फिर ले कल ड्रिंक का कहेंगे। ज़ारा ने तनखियों से दोनों की तरफ देखा। वो दोनों अभी से घूर रही थी। उनमें से एक आगे बढ़ी और ज़ारा के कंधों पर हाथ रखा। बात सुने मम्मा, पार्ट 2। सॉरी, हमारी वजह से आपकी चाय गिर गई। ज़ारा के दिल में ममता की ठेस उठी। इतना प्यारा लहजा, इतनी प्यारी सॉरी, ऐसे कौन करता है। उसे फौरन से पलटकर उस नन्ही सी बच्चों के गालों पर प्यार किया तो दूसरी फौरन से लाड लेने के लिए आगे आई। ज़ारा ने उसे गोद में उठाकर प्यार किया। वो दोनों भी इंतहा खुश हुई। मम्मा पार्ट 2। एक ने उसे बुलाया तो वो हैरान हुई, क्या मैं वाकई आपकी मम्मा जैसी हूँ? ये सुनकर वो दोनों ही हंस पड़े। बिल्कुल, आप बिल्कुल उनके जैसी हैं। कभी आप हमारे घर आइए, करा उनकी तस्वीर लगी हुई है, आप उन्हें देखिएगा, बिल्कुल आपकी तरह है। सारा का हाथ ठनका। तस्वीर? क्या आप मुझे अपनी मम्मा से नहीं मिलवाएंगी? उन दोनों के चेहरे लटक गए और बकायदा आंसू भी आंखों में झिलमिलाने लगे। ज़ारा को अपनी गलती का एहसास हुआ। क्या हुआ है? उसने फौरन से पूछा। हमारी मम्मा जहाँ रहती है वहां से कोई वापस नहीं जा सकता, ये हमारे बाबा कहते हैं। ये सुनकर ज़ारा को दुख हुआ। वो दोनों बच्चियां बिन माँ की भरी हुई थी। कोई बात नहीं, इट्स ओके। अल्लाह पाक अपनी प्यारी चीज को ही अपने पास बुलाते हैं। आपकी मम्मा तो बहुत प्यारी थी ना। ये सुनकर वो हल्का सा मुस्कुराई। आप हमारे साथ कलरिंग करेंगी? अब बहुत प्यारी कलरिंग बुक लाए हैं हम। ज़ारा ने वक्त देखा। लंच टाइम में 15 मिनट का ब्रेक बाकी था। हाँ हाँ, मैं जरूर करूंगी, लेकिन जब लंच टाइम होगा तब। ये सुनकर वो दोनों ही खुश हो गई थी और उसकी गोद से उतरकर कहीं गायब हो गई। ज़ारा के दिल में जैसे सुकून सा आ गया। वो दोबारा अपने काम में मसरूफ हो गई। ठीक 15 मिनट बाद उसे ऐसा महसूस हुआ किसी ने उसका दुपट्टा खींचा था। उसने काम से सर उठाकर देखा तो आसपास की सारी केबल्स खाली हो चुकी थी और तमाम लोग लंच के लिए कैफेटेरिया की तरफ बढ़ गए थे। वो वहीं बैठी रही और उसका दुपट्टा खींचने वाली मखलूक कोई और नहीं, वही जुड़वा बहनें थी, सिनाया और मारिया। इट्स ओके, लंच टाइम। दोनों की बातें सुनकर ज़ारा ने अपना काम छोड़ दिया और फिर वो दोनों जानिब कुर्सियां लगाकर दोनों को अपने पास बैठाया और कलरिंग में उनकी मदद करने लगी। वो बहुत से कलर्स लाई थी। ज़ारा इतनी मगन हुई कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि ज़रान मलिक कब उसके सर पर आकर खड़ा हो गया और हैरत से इन दोनों को आपस में इस कदर दोस्ती और मिलाप देख रहा था। ज़रान मलिक ने अचानक से गला खनकारा और फौरन से सर उठाकर उसकी तरफ मुतवजा हुई। ज़रान मलिक के लबों पर खूबसूरत सी मुस्कुराहट बिखर गई। ज़ारा की नाक पर पेंटिंग लगी हुई थी। मम्मा पार्ट 2 तो बिल्कुल जोकर लग रही है। सिनाया ने कहा तो मारिया भी हंस पड़ी। ज़रान मलिक अपनी जगह थम गया। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। सनाया मारिया उसकी नाराजगी के ख्याल से डर गई थी। उसने पास रखा टिश्यू पेपर उठाकर उसे दिया। ज़ारा जो अब तक समझ नहीं सकी थी, उसने जैसे ही स्क्रीन पर अपना चेहरा देखा उसे एहसास हुआ कि उसकी नाक पर पेंटिंग लगी हुई है। उसने फौरन से रुख मोड़ कर अपनी नाक से पेंटिंग साफ की। सॉरी बच्चे, ज्यादा ही शरारती हो गया है, हम लंच के लिए जा रहे हैं, चलो सनाया मारिया। तभी उन दोनों को एहसास हुआ कि मिस ज़ारा ने तो लंच ही नहीं किया। मारिया आगे बढ़ी और अपने बाप का हाथ थाम लिया। बाबा, आंटी ने लंच नहीं किया, हम इन्हें भी अपने साथ ले जाए? ये सुनकर ज़ारा ने फौरन से नफी में सर हिलाया। इट्स ओके,
آج مجھے ویسے بھی بھوک نہیں ہے۔ زاران ملک چند میں اسے دیکھتا رہا، اس کی آنکھوں میں عجیب سی اداسی وہ ہمیشہ دیکھتا آ رہا تھا، آج اس میں گہرا رنگ دکھائی دینے لگا۔ پلیز بابا، پلیز بابا، پاپٹو کو کہیں لے کر چلے نا، وہ آج ہمارے ساتھ لنچ کریں گی، پلیز بابا۔ وہ دونوں ایک ساتھ چیخنے لگے تو زاران ملک بے بس سے زارا کی طرف دیکھنے لگا۔ پلیز، میری بیٹیوں کی خاطر، یہ دونوں بچی ہیں، سمجھتی نہیں ہے، کیا آپ ہمارے ساتھ لنچ پر آ سکتی ہے؟ زارا کی آنکھوں میں حیرت کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ اس نے لفی میں سر ہلایا کہ سنایا اور ماریا نے اس کا ہاتھ تھاما اور پھر اسے چیئر سے اٹھانے لگی۔ اور میں چل رہی ہوں۔ زارا نے اپنی چادر درست کی اور پھر ان دونوں کا ہاتھ تھام کر آگے بڑھی۔ زاران ملک نے یہ منظر حیرانی سے دیکھا اور پھر سر چٹک کر اپنی بچیوں کی ضد کے آگے ہتھیار ڈال کر ان کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ گاڑی ایک بڑے سے ریسٹورنٹ کے سامنے رکی۔ زارا اندر داخل ہوئی۔ سنایا اور ماریا نے اس کی ارد گرد اپنی سیٹیں سنبھال لی۔ زاران ملک زارا کے بالکل سامنے بیٹھا، آرڈر دینے لگا۔ اب کیا لیں گی؟ اس نے اپنے اور بچوں کا آرڈر دینے کے بعد اس سے پوچھا۔ میں ویسے ہی یہاں بیٹھ جاؤں گی، مجھے کھانا نہیں کھانا۔ یہ سن کر زاران نے اچھپٹے سے اس کی طرف دیکھا۔ کم آن مس زارا، میں اتنا کمزور نہیں کہ اپنی بچیوں کی خاطر آپ کو یہاں لاؤں اور کھانا ہی نہ کھلاؤں۔ جو دل چاہتا ہے آرڈر کر لیں، پیسوں کی فکر نہ کیجیے، یہ میری طرف سے ایک ٹریٹ ہے۔ زارا نے کچھ کہنے کے لیے اپنے لب فاق کیے، لیکن زاران ملک نے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا۔ وہ 35 سال کا شخص اسے بے بس کیوں کر رہا تھا؟ وہ سوچے بغیر نہ رہ سکی اور پھر اس نے اپنے لیے چھوٹا سا برگر آرڈر کر دیا۔ زاران ملک اور زارا نے خاموشی سے وہ وقت گزارا۔ 20 منٹ بعد ان کا آرڈر آیا۔ تب تک سنایا اور ماریا نے زارا سے کئی سوال کر ڈالے۔ اسے جیسے ہی پہلا نوالا لینے کے لیے منہ کھولا تو گیٹ کے اندر سے داخل ہوتی ارسلان اور پلوشا پر اس کی نظر پڑی تھی اور وہ پلک کی جھپکنا بھول گئی۔ اس کے ہاتھ سے چمچ چھوٹ کر گیا تو میز پر موجود تینوں افراد حیران رہ گئے۔ اس نے ان کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو وہاں ایک جوڑا، جس میں لڑکی امید سے لگ رہی تھی، اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے مرد کے بازو کو تھامے اندر داخل ہوئی۔ وہ دونوں مکمل لگ رہے تھے۔ زارا کے اندر بہت کچھ ٹوٹ سا گیا۔ پورے 7 مہینے بعد وہ ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ اسے فوراً سے اپنی آنکھیں جھکائی اور پلکیں چپک چپک کر آنسو روکنے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ آپ ٹھیک ہے؟ زاران ملک نے رخ پھیر کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ ایکسکیوز می، میں چلتی ہوں۔ وہ فوراً سے کھڑی ہوئی تو سنایا اور ماریا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ پلیز آپ بیٹھ جائیں نا، پلیز نہ جائیں، کھانا تو کھا لے۔ وہ دونوں اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی، لیکن اس بار زارا نہ رکی۔ اپنی چادر درست کر کے وہ ایک طرف سے نکل کر تیزی سے ریسٹورنٹ سے باہر آئی اور وہاں سیڑھیوں پر بیٹھ کر اپنے سینے پر اٹکی ہوئی سانس باہر کی۔ سینے پر ہاتھ رکھ کر بے اختیار اپنے دل کو مستا تھا اور پوٹ پوٹ کر رو پڑی تھی۔ آس پاس لوگوں نے اسے دیکھا تو وہ فوراً سے کھڑی ہوئی اور سامنے سے گزرتے رکشے کو ہاتھ دیا۔ رکشے میں بیٹھتے ہی اس کا ضبط جواب دے گیا۔ 7 مہینے پہلے کا وہ منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا، جس نے اس کی زندگی برباد کر کے رکھ دی تھی۔ 7 مہینے پہلے رات گہری ہو رہی تھی، آسمان پر بادل برس رہے تھے اور وہ کھڑکی کے پاس بیٹھی نماز کے بعد آسمان کو تکنے لگی۔ کاش میری دعا قبول ہو جائے۔ کہتے ہیں نا، بارش میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اے میرے خدا، تو میری دعا قبول کر۔ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا اور وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے بیٹھ پر آئے جہاں اس کا مجازی خدا گہری نیند سو رہا تھا۔ اس نے ایک نظر اپنے شوہر پر ڈالی اور پھر اس کے برابر میں لیٹ گئی۔ ارسلان، بات سنے۔ وہ جو نیم غنودگی کی کیفیت میں تھا، اس نے کندھا جھنجھوڑ کر اسے ہلایا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ کر بیٹھا اور ناگواری سے زارا کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ کیا مسئلہ ہے؟ گہری نیند سے کیوں اٹھا رہی ہو؟ اس کا لہجہ انتہائی شفاف تھا۔ وہ ٹھہری، اب سے ایک بات کہنی تھی۔ اس نے اس کے لہجے کو نظر انداز کر کے اس کا بازو تھاما۔ اس کے کندھے پر سر رکھا تو ارسلان نے خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ اتنا پیار کیوں آ رہا ہے تمہیں آج مجھ پر؟ وہ بھی نیند سے اٹھا کر؟ ارے حد ہوتی ہے یار۔ ارسلان ابھی بھی غصے میں ہی تھا۔ اسے محبت پاش نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کل ہمارے ڈاکٹر کے پاس اپائنٹمنٹ ہے،
असलान ने बेख्तियार कनपटी मस्ती, पता है इसमें कोई बात तो बताने वाली है क्या? वो हर तरजा बेजार नजर आने लगा। दिल जैसे एकदम टूट कर बिखर गया। चलाकी की आवाज के साथ उसका वजूद भी बिखरता चला जा रहा था। प्लीज टूट हो जाओ, बहुत नींद आ रही है, सोना है, मुझे ऑफिस भी जाना होता है। तुम तो सारा दिन घर में घूमती रहती हो, इस वक्त तुम्हें याद नहीं आता? उसे बुरी तरह से डांट कर एक बार फिर से करवट लेकर सोने की कोशिश करने लगा। थोड़ी ही देर में नींद में वो गुम हो गया था। ज़ारा की नींद अब उड़ चुकी थी कि कैसी आजमाइश है मेरे रब। मेरा अरसलान, मेरा वो अरसलान जिसने मोहब्बत से मुझसे शादी की, और अब जैसे उससे बुरा इस दुनिया में कोई मर्द ही नहीं है। वो रो पड़ी थी, अपने आंसू को बहने दिया था, और नींद बहती आंसू के दरमियान अपने रब से शिकायत करते हुए नींद की गहरी वादी में खो गई थी। सुबह उसकी आंख खुली तो अरसान कमरे में मौजूद नहीं था। वो धक से रह गई और भाग कर नीचे आई तो वो नाश्ता कर रहा था। उठ गई आप मेहरानी साहबा। ये नसीम बेगम का अंदाज से तखातुब था, और ज़ारा को अब उसकी आदत हो चुकी थी। वो, मेरी मेरी आँख नहीं खुली, आपने मुझे उठाया भी नहीं अरसान। उसका शिकवा अरसान से था। अच्छा, तो अब ये जिम्मेदारी भी मेरी है कि मैं तुम्हें उठाऊं? बीवी तुम हो ना, तुम्हें मुझे उठाना चाहिए था। मैं उठा, ऑफिस के लिए देर हुई इसलिए नीचे आ गया, अम्मी ने नाश्ता दे दिया। अब इसमें बात का पतंगर क्यों बना रही हो? ज़ारा अपनी जगह हैरान रह गई। मैंने तो बस, वो कहना चाहती थी लेकिन नसीमा बेगम ने उसे रोक दिया। अच्छा अच्छा, बस बस, मेरे बेटे को नाश्ता तो करने दो। एक औलाद की खुशी तो तुम दे नहीं सकती, कम से कम ये छोटी मोटी खुशियां ही इसको नसीब में लिखने दो। कोशिश किया करो अपना मुंह बंद करके। आखिरी बात उन्होंने कदरे जोर से कही तो ज़ारा को लगा कि जैसे आहिस्ता आहिस्ता उसके जिस्म से उसकी रूह भी निकलती जा रही है। वो जिंदा लाश बन गई। हर किसी को उसके जिंदा लाश बनने का इल्म ही नहीं है। वो सर लाकर वापस मुड़ी और किचन में आकर दहाड़े मार मार कर रो दी, लेकिन उसने अपने मुंह पर हाथ रख के आंसुओं को, आवाज को रोकने की कोशिश की। असलान ऑफिस चला गया था और उसे बाय भी नहीं कहा था। ये तो उसका रोज का मामूल था, तो फिर अब उसके मामूलात में तब्दीली क्यों आ रही थी? ये बात ज़ारा की समझ से बालातर थी। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसका अरसान, उसका अपना अरसान, जिसके साथ उसने अपनी जिंदगी के 4 साल गुजारे थे, वो क्यों उससे इतना दूर हो रहा था। उसे वजह मालूम थी, लेकिन वो उस वजह का क्या करती? क्या वो कसूरवार थी? उसने खुद से सवाल किया। जल्दी जल्दी काम निपटाने के बाद वो दोबारा अपने कमरे में आकर तैयार होने लगी। कपड़े तब्दील करने के बाद उसने बाल बनाए, सिर पर चादर ली और अपनी सारी रिपोर्ट्स उठाकर खुद ही धीरे धीरे कदम उठाते घर से बाहर निकल गई। टैक्सी में बैठने से पहले उसने अरसान को कॉल मिलाई। अरसान, 11 बज गए हैं, डॉक्टर 12 बजे आती है, मैं घर से निकल रही हूँ, आप पहुंच जाएंगे ना? वो जो मीटिंग में मसरूफ था उसका फोन देखकर पहले तो उसके चेहरे के जाविये बिगड़े, और फिर जब फोन कान से लगाया और दूसरी तरफ से उसे ज़ारा ने ये खबर दी तो उसका दिल चाह के उसे साफ साफ मना कर दे। तुम चली जाओ, अगर मैं आ सका तो जरूर आऊंगा, इंतजार करना मेरा। ज़ारा ने गहरी सांस भरी और टैक्सी में बैठकर शीशे के पार से नजर आने वाले मनाजिर पर निगाह टिका दी। जिंदगी भाग दौड़ रही थी, लेकिन उसे लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी तो रुक सी गई है। ठीक आधे घंटे बाद टैक्सी हॉस्पिटल के आगे रुकी और वो गायनोलॉजिस्ट के पास पहुंच गई, जहां पहले से पेशेंट मौजूद थे। उसकी निगाहें बार बार घड़ी पर जाकर ठहरने लगी। दिल में एक अजीब सी धक धक होने लगी थी। तभी नर्स ने 15 मिनट के बाद आकर उसे याद दिलाया कि अब उसकी बारी है, आप प्लीज थोड़ा वेट कर लें, मेरे हस्बैंड अभी आते ही होंगे। उसे अजीब सी शर्मिंदगी हो रही थी। कोई बात नहीं, हम वेट कर लेंगे, लेकिन बस ज्यादा देर नहीं होनी चाहिए। नर्स ने अपनी प्रोफेशनल मुस्कुराहट चेहरे पर सजाते उसे कहा था। 2 मिनट गुजरे, फिर 10 मिनट भी गुजर गए, और फिर 1 घंटा भी गुजरने वाला था। डॉक्टर जाने वाली थी, तभी उसे मजबूरन डॉक्टर के पास अपने शौहर के बगैर ही जाना पड़ा। हालांकि डॉक्टर ने उसे ताकीद से कहा था कि अपने शौहर को जरूर साथ पाए, पर वो क्या करती? शायद उसके शौहर को इन मामलात में दिलचस्पी नहीं रही थी। डॉक्टर ने सारी रिपोर्ट्स अपने सामने रखी और फिर मुस्कुराते उसकी तरफ देखा।
آپ کی تمام رپورٹس کلیئر ہیں، لیکن آپ کے شوہر کی؟ جیسے جیسے ڈاکٹر نے وہ جملہ کہا ویسے ویسے اس کا دل بیٹھتا چلا گیا۔ دل میں ایک طرف خوشی تھی تو دوسری طرف صدمے کا ایک پہاڑ تھا جسے وہ سر کرنا چاہتی تھی۔ آنسو آنکھوں سے بہتے چلے جا رہے تھے۔ ڈاکٹر نے ہاتھ بڑھا کر اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ آپ فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا، بس اپنے ہسبینڈ سے کہے کہ وہ ہماری ہدایت کے مطابق ہمارے پاس ضرور آیا کرے، ان کا علاج بھی ضروری ہے۔ زہرا نے محض سر ہلایا، پھر انتہائی بھاری قدموں کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی۔ دوپہر کے 4 بج گئے تھے اور وہ دوبارہ سے ٹیکسی کے دھکے کھا کر ابھی گھر داخل ہوئی تھی کہ نسیمہ بیگم کے طنز سے بھرے جملوں نے اس کا دل چھلنی کر کے رکھ دیا۔ ہو آئی ہو ڈاکٹر کے پاس سے، کیا کہا؟ یہی نا کہ اب کوئی امید نہیں ہے، 4 سال تھے تمہیں لوٹ رہی ہے، اب بھی تم اسی کے پاس دھکے کھا رہی ہو۔ مان کیوں نہیں لیتی کہ تم بانجھ ہو اور بانجھ ہی رہو گی؟ زارا نے دماغوں سے ان کی طرف دکھا کر کچھ کہے بغیر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، لیکن وہاں کا منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ارسلان کے ساتھ کھڑی عورت کوئی اور نہیں بلکہ اس کی سیکرٹری پلوشا تھی، جو زارا کے بستر پر اس کے ساتھ بیٹھی اس کے انتہائی قریب کوئی راز و نیاز کر رہی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ اس کا صبر جواب دے گیا تھا۔ وہ فوراً سے آگے آئی اور ارسلان کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ اس کا پورا وجود لرزنے لگا، ہونٹ کپکپا رہے تھے۔ کسی دوسری عورت کو اپنے کمرے میں اپنے بستر پر اپنے شوہر کے ساتھ دیکھ کر اس کے دل پر کیا گزرتی ہے، سارا کو اب پتا چلا تھا۔ ارسلان نے سینے پر بازو لپیٹ کر بغیر کسی شرمندگی کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ اچھا ہوا تم اچھے وقت پر آ گئی، آج فیصلہ ہو ہی جائے گا۔ ارسلان کا فیصلہ کن لہجہ زارا کو کسی قیامت کی نوید دے رہا تھا۔ ارسلان، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ مطلب کیا ہے آپ کا؟ یہ لڑکی میرے بستر پر آپ کے ساتھ اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آج فیصلہ ہو جائے گا؟ کون سا فیصلہ؟ زارا پھٹ پڑی۔ وہ آج کلینک میں بھی اس کے ساتھ نہیں تھا، اور اب تو اس نے شادی کر دی تھی، اپنی سیکرٹری کے ساتھ اس کے کمرے میں موجود تھا۔ یہ کوئی اور لڑکی نہیں، میری بیوی ہے۔ الفاظ تھے کہ بم جو زارا کے سر پر گرائے گئے۔ کیا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ فوراً سے آگے بڑھی اور ارسلان کا گریبان تھام لیا۔ آپ نے میرے ہوتے دوسری شادی کر لی؟ وہ رو پڑی تھی۔ ارسلان نے ایک جھٹکے سے اپنا گریبان سے اس کا ہاتھ ہٹایا۔ ہاں بالکل، کیونکہ اب میں تنگ آ گیا ہوں۔ 4 سال تک تم مجھے اولاد نہیں دے سکی، اب کیا اولاد ہوگی؟ اسی لیے میں نے اپنی سیکرٹری پلوشا سے دوسری شادی کر لی۔ اسے زارا کا ہاتھ جھٹک کر پلوشا کا ہاتھ تھاما، جو مسکراتے ہوئے زارا کو اس کی شکست کی نوید سنا رہی تھی۔ ارسلان، خدا کا واسطہ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میں آپ کی بیوی ہوں، آپ نے مجھ سے محبت کی، ہماری محبت 2 سال تک چلی، اپنے گھر والوں کو منایا، مجھ سے شادی کی، اور اب آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں نے دوسری شادی کر لی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ زارا کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر سے ارسلان کا بازو تھام کر اسے اپنی محبت کی داستان سنائی تھی جو 2 سال پر بیت تھی، پھر دونوں نے شادی کر لی تھی۔ ارسلان نے ایک بار پھر سے اسے دور دھکیلا۔ تمہارے ساتھ میری زندگی کسی عذاب سے کم نہیں تھی، اور آج میں نے اس عذاب سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کی۔ میں اب تمہیں مزید اپنی زندگی میں برداشت نہیں کر سکتا، نکل جاؤ میری زندگی سے۔ میں اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ وہ دوڑ کر اس کے قریب آئی اور اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ نہیں پلیز نہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ مجھے طلاق کیوں دے رہے ہیں؟ زارا نے غصے میں اس کا ہاتھ زور سے جھنجھوڑا۔ پلوشا یہ سارا تماشا دیکھ کر مسکرائی تھی اور چند قدم آ گئی، کیونکہ 4 سال تم نے اسے اولاد نہیں دی، اور میں نے محض 2 مہینے میں اس کی اولاد کی خواہش پوری کر دی ہے۔ وہ ٹکر ٹکر ان دونوں کو دیکھے گی تو گویا دونوں کی شادی کو 2 مہینے گزر گئے تھے۔ ارسلان اسے دھوکہ دے رہا تھا۔ اب اسے سمجھ آ رہا تھا کہ ارسلان کا رویہ ایسا کیوں تھا، وہ راتوں کو دیر دیر تک باہر کیوں رہتا تھا۔ اس کی وجہ کوئی اور نہیں، پلوشا تھی، جو اس کے سامنے مجسم کھڑی اس کے جذبات کا مذاق اڑاتے ہوئے اس کی قاتل تھی۔
ज़ारा ने खाली-खाली निगाहों से अरसान की तरफ देखा। उसमें दिमाग में डॉक्टर की बातें गुजरने लगी। वो वहीं ज़मीन पर बैठती चली गई। अरसान ने फिर दूसरी और तीसरी तलाक भी साथ ही दे दी। अब तुम्हारा मुझसे कोई वास्ता नहीं है। तुम इस घर में अब नहीं रह सकती। अपना बोरिया बिस्तर बांधो और निकलो यहाँ से। उसने ज़ारा को कमरे से धकेल दिया था। नसीमा बेगम ने दरवाजे पर खड़े होकर ये सारी गुफ्तगू सुनी थी और उसे घर से बाहर जाने का इशारा किया था। तुम्हारा सामान तुम्हारे आने से पहले ही मैंने बांध दिया है। उठाओ अपना सामान और निकलो यहाँ से। ज़ारा ने चंद में उनकी आंखों में देखा। आप सबको हकीकत जल्द मालूम हो जाएगी। वक्त बहुत बड़ा मरहम है। मेरा जख्म तो भर ही जाएगा, लेकिन जो जख्म आपको लगेगा वो कभी नहीं भरेगा। मेरी दुआ है कि अरसलान पलवशा के साथ खुश रहे, लेकिन सच एक ना एक दिन तो सामने आएगा ना। वो कहकर रुकी नहीं, मुंह पर हाथ रखकर रोते हुए घर से बाहर निकल गई। कोई ठिकाना, कोई आसरा नहीं था। माँ बाप तो पहले ही गुजर चुके थे। अब भाई के घर जाते हुए भी शर्म आती थी कि भाभी ने पहले भी उसकी शादी इसी वजह से जल्दी की थी कि वो इसे छुटकारा हासिल करना चाहती थी। लेकिन वो क्या करती। धीरे धीरे उजड़ी हालत में चलती भाई के घर में दाखिल हुई तो भाभी ने उसे देखकर सर पीट लिया। आ गई कल ही तलाक का दाग लेकर। गोया नसीम बेगम ने पहले उन लोगों को फोन पर इत्तला दे दी थी। आगे मेरे सीने पर मुंह ढलने के लिए बैठी रहेगी। वो वही सोफे पर बैठी तो उसके छोटे भतीजे ने भाग कर उसे पानी पिलाया। उस नन्ही सी जान की मोहब्बत पर उसकी आंखों में बेपनाह आंसू उबल पड़े और फिर वो अपने कमरे में आकर बंद हो गई। जिंदगी ने उसे कहाँ लाकर खड़ा किया था उसे कुछ मालूम नहीं था, लेकिन उसे इतना जरूर पता कि था कि खुदा ने उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा लिख दिया है जो उसकी जिंदगी बदल कर रख देगा। जरान मलिक की मेज पर रखी घड़ी की सुइयां 11 बजे का ऐलान कर रही थी, मगर सामने वाले केबिन की कुर्सी पर बस्तूर उसकी खाली थी। उसने फाइल बंद की, कुर्सी से टेक हटाई और दरवाजे की तरफ देखते हुए कॉल बुलाई। वकास, जरा अंदर आओ। मैनेजर वकास तेजी से कमरे में दाखिल हुआ। यस सर। जरान ने उसे देखा। मिस ज़ारा 2 दिन से नजर नहीं आ रही है। क्या उन्होंने लीव अप्लाई की है? अपने सवाल पर वो खुद भी हैरान था। वकास ने टेबलेट चेक किया। नो सर, उनकी कोई लीव नहीं है और ना ही कोई इन्फॉर्मेशन आई है। जरान के माथे पर हल्की सी शिकन उभरी और लम्हा पर खामोश रहा जैसे किसी अंदरूनी कश्मकश में हो। फिर कुर्सी के बाजू पर उंगलियां बजाई। ठीक है, मुझे नंबर दे, मैं खुद कॉल करता हूँ। वकास ने फौरन नंबर आगे बढ़ाया। जरान ने फोन मिलाया। वकास बाहर जा चुका था। 1 2 3 रिंग। दूसरी तरफ देर से कॉल उठाई गई। किचन में चूल्हे के साथ खड़े ज़ारा का सर चकरा रहा था। पेशानी तप रही थी। आंखों के आगे अंधेरा सा आ रहा था, मगर हाथ मुसलसल आटे को गूंद रहे थे। बुखार की शिद्दत उसके बदन में लर्जा पैदा कर रही थी, मगर भाभी की आवाज कानों में गूंजने लगी। बुखार तो सबको होता है, काम कौन करेगा? उस समय किचन के कोने में रखा फोन बज उठा। ज़ारा ने एक लम्हे को आंखें बंद की, जिसे खुद को संभाल रही हो। हाथ आटे से भरे थे, सांस उखड़ी हुई थी। उसे बामुश्किल आवाज दी। भाभी, फोन देख रहे। भाभी ने तुरछी निगाह डाली और हाथ झाड़ते हुए फोन उठा लिया। हेलो। दूसरी तरफ जरान की पुरसुकून मगर पाइकदार आवाज आई। अस्सलाम वालेकुम, मैं जरान मलिक बात कर रहा। क्या मिस ज़ारा से बात हो सकती? भाभी के चेहरे पर एक लम्हे को हैरत और फिर शक की गहरी लकीर ने जन्म दिया। जी, वो किचन में है। फोन उसने जरा सख्ती से ज़ारा की तरफ बढ़ाया। ज़ारा ने कांपते हाथों से फोन पकड़ा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जरान ने कदरे तवक्कुफ से कहा। मैं ज़ारा, आप 2 दिन से ऑफिस क्यों नहीं आई? कोई मसला है? ज़ारा ने चूल्हे पर तपते तवे की तरफ देखा, जहाँ रोटी फूलकर जलने को थी। उसे सब्र का घूंट लिया। सर, तबीयत ठीक नहीं थी, बुखार है, इससे। जरान की आवाज में फिक्र की हल्की सी लहर दौड़ गई। तो आपने इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? सॉरी सर। उसकी आवाज लड़स गई। मैं कर नहीं पाई। सदमों की खामोशी के बाद जरान की नरम आवाज सुनाई दी। ठीक है, अपना ख्याल रखें, मगर एक बात वाज़ेह कर दूं, कल से आप ज्वाइन कर लें प्लीज। ज़ारा के दिल में एक अनजाना सा खौफ लरसा। जी सर, मैं पूरी कोशिश करूंगी, वो धीरे से बोली।
कोशिश नहीं, ज़रा ने संजीदगी से कहा। हमें आपकी ज़रूरत है। आई मीन वो गड़बड़ाया। ऑफिस को आपकी ज़रूरत है। ये जुमला ज़ारा के दिल में कहीं उतर गया। थैंक यू सर। फ़ोन कट गया और ज़ारा ने फ़ोन आहिस्ता से मेज़ पर रखा। सर, अब भी बारी था, मगर दिल में एक अजीब सी हलचल थी। उसे दोबारा बेलन उठाया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मगर इससे पहले कि कुछ कर पाती, भाभी की नजरें उस पर जम गई। कौन था? भाभी ने सर दर्जे में पूछा। इजारा ने नजरें झुका ली। ऑफिस से बॉस थे। भाभी के होंठों पर एक तंजिया मुस्कुराहट आ गई। अच्छा, इस उसके पास खुद फोन करने लगे तुम्हारे पास बॉस? वो एक कदम आगे बढ़ी। ख्याल रखना जरा, ऐसी नौकरियां इज्जत के साथ भी जाती हैं और बदनामी के साथ भी। इजारा का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में खींच लिया। उसकी आंखें नम हो गई, मगर उसने सर नहीं उठाया। जवाब देना चाहा, बहुत कुछ कहना चाहा, मगर अल्फाज फिर खामोशी में डूब गए। हम गाँव जा रहे हैं। भाभी ने सीन में खड़े खड़े ऐलान किया, जैसे कोई हुक्म सुना रही हो। कल शादी है, तुम सबकी पैकिंग कर दो, और हाँ, सुबह सवेरे उठकर नाश्ता भी बना देना, हमें जल्दी निकलना है। वो कल की प्लानिंग अभी ही बताने लगी थी। जारा ने सर झुकाकर बस चीखा। बुखार की हल्की सी लहर अब भी बदन में थी, मगर उसने चेहरे पर कुछ जाहिर नहीं होने दिया। वो जानती थी कि हम बीमारी की इजाजत नहीं, सिर्फ काम की गुंजाइश है। रात भर वो कपड़े तय करती रही, सूट इस्त्री के, बच्चों के जूते ढूंढे। आंखें जल रही थी, मगर हाथ चलते रहे। क्या करती, वो मजबूर थी। तलाक याफ्ता भी थी और बांझ भी। ये वो दाग थे जो उसके किरदार पर जड़ गए थे। सुबह अंधेरे में वो जागी, किचन में जाकर चूल्हा जलाया, अंडे फ्राई किए, चाय बनाई, पराठे सेके। जब सब तैयार होकर बाहर निकले तो भाभी ने एक बार फिर मुड़कर भी नहीं देखा। ताला ठीक से लगा देना, शायद रात को आपसी हो, या फिर कल सुबह किसी को फहमी में मत रहना। आखिरी जुमला जारा के दिल में चुप सा गया। उसने टूटे हुए दिल के साथ दरवाजा बंद किया। घर में अचानक एक अजीब सी खामोशी फैल गई। जारा ऑफिस के लिए तैयार होने लगी। आज उसने सादा और साफ लिबास पहना था। बाल समेटे, चेहरे पर हल्की सी ताजगी लाने की कोशिश की। आईने में खुद को देखा तो एक लम्हे को दिल काम गया। आंखों में एक अजीब सी थकन थी, गहरे हल्के थे। वो जैसे खुद को ही ना पहचान सकी थी। ऑफिस में हंसबे मामूल मसरूफियात थी। जारा फाइलें तरतीब दे रही थी कि अचानक शोर सा उठा। रिसेप्शनिस्ट की तरफ से घबराई हुई आवाज आने लगी। सर की बेटी सीढ़ियों से गिर गई है। जारा के हाथ से फाइल छूट गई। उसका दिल जोर से धड़का। सना? सुनाया? वो नन्ही सी शरारती जिसने उसे मम्मा मम्मा कहकर गले लगाया था। जारा की सांस रुक सी गई। वो अपनी जगह पत्थर की तरह खड़ी रह गई, जैसे जिस्म में जान न रही हो। अगले लम्हे उसने देखा कि जरान मलिक तेजी से उसकी तरफ आ रहा है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी, बल्कि एक बाप की बेबसी साफ झलक रही थी। जारा, उसने करीब आकर कहा, प्लीज आप मेरे साथ चलें। जारा चौंक गई। सर, पर कहा? वो पूछे बगैर न रह सकी। सनाया आपको बुला रही है। उसकी आवाज भरा गई। वो बार बार आपका नाम ले रही है। मैं बेबस हूँ, प्लीज आप तो जानती है ना। जारा ने एक कदम पीछे हटकर उसे देखा। सर, मैं कैसे? ऑफिस। जरा ने अचानक उसके सामने हाथ जोड़ दिए। प्लीज। उसकी आवाज में इल्तजा थी। मेरी बेटी तकलीफ में है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। जारा की आंखें नम हो गई। उसने मजीद इनकार न किया। चले सर। वो जरान के घर आ चुकी थी, जो आज उसे अजनबी नहीं लगा, मगर फिजा बोझल थी। सनाया बेड पर लेटी थी, पिशाने पर पट्टी बंधी हुई थी। उसे जैसे जारा नजर आई। उसके लब हिले। मम्मा। जारा के कदम खुद ब खुद उसके पास आन ठहरे। उसने नरमी से सनाया का हाथ थामा। यही हूँ। उस सरगोशी में बोली, कुछ नहीं होगा, रिलैक्स। जारा की वालदा आरफा बेगम दरवाजे पर खड़ी ये मंजर देख रही थी। आगे बढ़ी। उनकी आंखों में शुक्रिया का रंग था। बेटी, तुम आ गई तो जैसे दिल को सुकून मिल गया। उन्होंने जारा का हाथ थाम लिया। आज यही रुक जाओ, सनाया तुम्हारे बगैर चैन से ही नहीं रहेगी। मारिया भी उसके पास आ गई। जारा ने हिचकिचाते उन्हें देखा। जी आंटी, पर मुझे भाभी, मेरी भाभी, सब हो जाएगा, हम बात कर लेंगे। उन्होंने नरमी से कहा, अभी तुम यही रहो, बच्ची जब तक ठीक ना हो जाए तब तक। वो वहीं ठहर गई थी।
उसे सनाया को सुनाया। रात गहरी हो चुकी थी। आइए, मैं आपको ड्रॉप कर दूं। जरान बड़ी की ऑफर को वो ठुकरा न सकी। रात की 11 बज रहे थे। उसे जैसे ही कदम रखा तो ताला खुला हुआ था। वो अंदर दाखिल हुई तो भाभी की चुपती हुई निगाहें उस पर ठहर सी गई। ये कौन है? उनकी आंखों में एक आग थी। यही दिन दिख रहा था ना? जारा की जारा की नजरें थम गई। इतनी गिर जाओगी तुम? हाँ, हमारे जाते ही किसी गैर मर्द के साथ? भाभी मैं जारा बोलना चाहती थी मगर अल्फाज का गला घोट दिया गया। बद किरदार, ये लफ्ज जारा के दिल में खंजर की तरह पेवस्त हो गया। हमें पहले ही शक था ऐसे मर्दों के साथ। उन्होंने इसका सामान बाहर फेंक दिया। निकल जाओ हमारे घर से। जारा लड़खड़ा गई। आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसी लम्हे जरार ने उसे थाम लिया। खबरदार। उसकी आवाज में ऐसी गूंज थी कि सब खामोश हो गए। किसी की इज्जत उछालने से पहले हकीकत जान लीजिए। जरान मलिक की बात पर भाभी तंजी हंसी। क्या हकीकत? ये कि तुम दोनों नौकरी के नाम पर एक साथ रन लिया। जरान ने एक कदम आगे बढ़ाया। खबरदार, अभी कौन लफ्ज थे? जहरा ने ठटक कर उसे देखा। ये लड़की मेरी बेटी की जिंदगी में सुकून बनकर आई है। इसी की खातिर वो मेरे घर मेरी माँ की मौजूदगी में उसकी खिदमत कर रही थी। आज मैं सबके सामने कहता हूँ कि मैं इससे निकाह करता हूँ। फिजा यकलख्त जैसे ठहर गई। जारा ने चौंक कर उसे देखा। सर, वो बेयकीन थी। वो रिश्तों को मजीद नहीं आजमाना चाहती थी। जरान ने उसकी तरफ देखा। आंखों में फैसला था। क्या तुम राजी हो? आंखों में आंसू ठहर से गए। जारा ने आहिस्ता से सर हिलाया। उसी लम्हे जरान की माँ आगे बढ़ी। हमें मंजूर है। वो ड्राइवर के साथ उनके पीछे आई थी। करीबी मस्जिद से इमाम को बुलाया गया। सेहिंग में खामोशी थी। बस दिलों की धड़कन सुनाई दे रही थी। मैं जनान मलिक अपने पूरे होशो हवास से जारा नदीम को अपने निकाह में कबूल करता हूँ। अल्फाज अदा हुए, गवाह बने और एक लम्हे में जारा की किस्मत का रुख बदल गया। जो लड़की सुबह नाश्ता बनाकर खामोशी से बर्दाश्त कर रही थी, शाम तक वो किसी की इज्जत, किसी की बीवी बन चुकी थी। वो जरान के साथ घर आई। मम्मा, मम्मा। सनाया और मारिया उसके पास आई और चिमट से गई। बेटा, मम्मा थक गई है, आप दादी के पास कमरे में जाए। अब ये यहीं रहेंगी। ठीक है। वो दोनों खुशी से उछल पड़ी थी और जारा ने पहली बार महसूस किया शायद ये लफ्ज मामा अब उसके लिए हमेशा के लिए है। कमरे में हल्की सी रोशनी थी। जारा बेड के एक किनारे सिमटी बैठी थी। हाथों की उंगलियां आपस में उलझी हुई थी, नजरें झुकी हुई थी। दिल तेजी से धड़क रहा था मगर उस धड़कन में खुशी कम और अजनबियत ज्यादा थी। दरवाजा आहिस्ता से खुला। जरान अंदर आया। उसके कदम मोहतात थे। उसने दरवाजा बंद किया। चंद लम्हे वहीं रुका, फिर कुर्सी खींचकर बेड से कुछ फासले पर बैठ गया। आप थक गई होंगी ना? उसकी आवाज में नरमी थी। जारा ने हल्का सा सर हिलाया। जी। खामोशी फिर फैल गई। ऐसी खामोशी जिसमें दो अजनबी एक ही छत के नीचे सांस ले रहे हो मगर एक दूसरे तक पहुंचने का रास्ता ना जानते हो। जारा ने गला खनकारा। मैं जानता हूँ ये सब अचानक हुआ। उसने तहमीद बांधी। पर मुझे इस वक्त यही बेहतर लगा। जो दाग मेरी वजह से लगे से धोना भी मुझे ही था। उसने नजरें उठाकर उसे देखा। अगर आपको वक्त चाहिए तो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि ये शादी सिर्फ सनाया और मारिया के लिए थी। जारा के दिल में जैसे किसी ने गिरा खोल दी थी। मुझे डर लग रहा है। वो सच बोल बैठी। आवाज बहुत धीमी थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने भी नहीं। जारा ने फौरन कहा, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। जारा ने हिम्मत की। जी कहिए। जरान हमतन गोश हुआ। मैं एक तलाक याफ्ता और 4 साल तक बांझ समझी जाने वाली औरत हूँ। जारा ने गोया धमाका किया पर वो कदरे पुरसुकून था। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मुझ पर कोई बोझ नहीं और आज कुछ भी आपकी मर्जी के बगैर नहीं होगा। मुझे आपको माजी में नहीं, सिर्फ हाल में दिलचस्पी होगी, वो भी सिर्फ मेरी बच्चियों के हवाले से। जारा ने पहली बार उसकी तरफ देखा। आंखों में खौफ के साथ साथ एक नन्ही सी हैरत भी थी। आप नाराज नहीं है? वो हल्का सा मुस्कुराया। नाराज नहीं, बस मोहतात हूँ, जैसी आप है। वो उठा। बेड की दूसरी तरफ चंद कदम के फासले पर बैठ गया। अब सो जाए, उसने कहा। मैं यहाँ हूँ, आप घबराए नहीं, मगर फासले पर मौजूद रहेंगे।
زارا کے دل میں جیسے اطمینان پھیل گیا۔ زارا نے گہری سانس لی، اسے کمبل درست کیا، پہلو بدلا۔ آنکھیں بند کرتے ہوئے وہ جاگ رہی تھی، روشنی مدم ہو گئی تھی۔ وہ دل ایک کمرے کی طرح تھے، مگر دو مختلف دنیاؤں میں جی رہے تھے۔ صبح کی روشنی کمرے میں پھیلی تو زارون نے دیکھا اس کی جوان بیٹیاں بستر کے کنارے بیٹھی سے گر رہی تھی۔ بابا! دو آوازیں ایک ساتھ آئی، پھر دونوں اس پر چڑھ دوڑی۔ ارے ارے! وہ ہنستے ہوئے نے باہوں میں سمیٹ گیا، ایک کو بائیں گال پر بوسا دیا، دوسری کو دائیں پر۔ اتنی جلدی جاگ گئی تم لوگ؟ مما مما کہاں ہے؟ ثنایا نے معصومیت سے پوچھا۔ زاران نے بھی تلاش میں نظریں دروازے کی طرف دوڑائی۔ زارا دروازے میں کھڑی تھی، ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں دودھ کے گلاس، پراٹھے اور بسکٹ رکھے تھے۔ اسے منظر دیکھا تو ٹھٹک گیا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ گئی۔ مما! دونوں بچیاں بستر سے پھسل کر اس کی طرف دوڑی۔ زارا نے ٹرے سائڈ پر رکھی اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر انہیں باہوں میں لیا۔ آہستہ، گر جاؤ گی شرارتی۔ زارا انہیں دیکھتا رہا، اس کے دل میں یہ منظر اتر گیا تھا جو اس کی زندگی کو مکمل سا بنا رہا تھا۔ یہ اتوار کا دن تھا، دوپہر میں وہ سب لان میں بیٹھے تھے۔ زاران فائل دیکھ رہا تھا، مگر نظریں بار بار بچیوں پر جاتی اور ٹھہر جاتی۔ کبھی وہ زارا کے دوپٹے سے کھیلتی تو کبھی اس کی انگلی پکڑ کر کچھ کہنے کی کوشش کرتی۔ وہ دونوں اب لان میں لگی سلائٹ لے رہی تھی۔ آپ بہت صبر سے سن لیتے ہیں، زارا نے بے ساختہ کہا۔ زارا نے چونک کر اسے دیکھا۔ بچے ہیں، وہ دھیرے سے بولی، ان کی باتیں سنی نہ جائے، دل اداس ہو جاتا ہے۔ زارا نے سر ہلایا۔ شاید اسی لیے سب مجھ سے زیادہ آپ کے پاس زیادہ خوش رہتے ہیں۔ وہ شرما بھی، نظریں جھکا لی۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس کے دل میں کوئی نرم سا احساس جگا، بغیر خوف، بغیر کسی اجنبیت کے۔ ان کی شادی کو 6 مہینے گزرے تھے۔ ثنایا کو پھر بخار چڑھ گیا تھا۔ رات کو زارا کو بے چینی ہوئی تو وہ فوراً سے بچیوں کو کمرے میں گئی۔ وہاں ثنایا بخار میں پنک رہی تھی۔ اسے فوراً سے ثنایا کو پٹی لگائی اور دودھ پلایا، پھر اسے گود میں لے کر لوڑی دے کر سلانے لگی۔ آدھی رات کو زاران کی آنکھ کھلی تو کمرے میں زارا موجود ہی نہیں تھی۔ اسے بے چینی ہوئی، وہ باہر نکلا۔ بچیوں کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ ثنایا کا بخار ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، زارا نے اسے بتا دی۔ اسے فوراً سے ڈاکٹر کو کال ملائی۔ بچی بار بار بے چین ہو کر کروٹیں بدل رہی تھی۔ بابا! ماما! کمزور سی آواز میں ثنایا نے آنکھیں کھولے بغیر کہا۔ زاران کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ اسے بے اختیار زارا کی طرف دیکھا۔ زارا فوراً آگے بڑھی، اسے ثنایا کو اپنے سینے سے لگایا، اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا، ہلکی آواز میں وہی لوری دہرائی جو اس کی ماں بچپن میں گایا کرتی تھی اور جو اس نے ثنایا کو تھوڑی دیر پہلے گا کر سنائی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا میری جان، میں ہوں نا۔ کچھ ہی دیر میں ثنایا کی سانسیں ہموار ہونے لگی، بخار کی تپش جیسے زارا کے لمس میں کم ہونے لگی۔ زاران یہ سب خاموشی سے دیکھتا رہا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ عورت صرف اس کے گھر میں موجود نہیں، بلکہ اب زارا اس کے بچوں کی دنیا بن چکی ہے۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد دونوں ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ گئے۔ بچیاں سو چکی تھی، ثنایا کی حالت اب بہتر تھی، رات کافی گزر چکی تھی۔ خاموشی میں صرف گھڑی کی ٹک ٹک تھی۔ آپ نے جو بھی کیا، زاران نے تحمید باندھی اور آہستہ سے اسے دیکھا، میں شاید کبھی نہیں بھول سکوں گا۔ زارا نے چونک کر اسے دیکھا۔ میں نے کچھ خاص نہیں کیا۔ زاران نے گہری سانس لی۔ یہی تو خاص ہے۔ پہلی بار اس کی آواز پر آ گئی۔ میں نے بہت سالوں بعد خود کو اکیلا محسوس نہیں کیا۔ زارا نے نظریں جھکا لی، اور میں نے پہلی بار خود کو غیر ضروری نہیں سمجھا، بلکہ مکمل سمجھا۔ میری بیٹی ٹھیک ہو جائے، بس مجھے اور کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ زاران اٹھا اور اس کے لیے گرم دودھ کا گلاس لے آیا۔ میں جانتا ہوں آپ ٹھیک سے سو نہیں پائی ہے، ثنایا نے آپ کو سونے نہیں دیا، اب یہ دودھ پی لیجیے، اس سے آپ کو اچھی نیند آئے گی۔ زارا خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھے گی۔ اس کی زندگی تو اس نے تمنا ہی نہیں کی تھی، لیکن ایک شخص کے پیچھے 4 سال گزارنے کے بعد اس کے ہاتھ کچھ نہ آیا۔ وہ رونے لگی۔ زاران نے اس کی طرف دیکھا، وہی لڑکی جسے حالات نے اس کے سامنے لا کھڑا کیا تھا، جسے اس نے ایک فیصلے میں اپنی زندگی سے جوڑ لیا تھا، اور جو اب خاموشی سے اس کی سب سے بڑی طاقت بن چکی تھی۔ زارا! اس سے پہلی بار اس کا نام پورے اختیار سے، پورے احساس سے لیا۔
मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि आपने मेरे बच्चों को माँ का सुकून दिया है। ज़ारा की आंखों में नमी उतर आई और आपने मुझे इज्जत दी है। वो इज्जत जो मेरे लिए सब कुछ है। एक लम्हे को दोनों खामोश हो गए। वो दोनों दर्द में एक दूसरे का सहारा बन गए थे। ज़ारा ने आहिस्ता से अपना हाथ उसके हाथ पर रखा। ज़ारा ने हाथ नहीं हटाया। वो दोनों करीब हुए। ज़ारा ने शिद्दत से उसे खुद में भींच लिया। ज़ारा खुश थी, बहुत खुश। ज़ारा ने उसे कबूल करके उसका हक दिया था और वो दोनों अब मुकम्मल थे। वो ज़रान की बाहों में मुकम्मल थी। वो शिद्दत से उसे खुद से लगाए अपने माजी का गम को भुला चुका था। जिंदगी का एक ऐसा खला बढ़ने लगा था। ज़रान के लम्स ने उसे समझाया कि जिंदगी अब हसीन है, बगैर किसी गम के। उस रात वो दोनों एक दूसरे के करीब आ गए क्योंकि अब वो दोनों सिर्फ शौहर और बीवी नहीं थे, वो एक दूसरे की कमी बन चुके थे। शादी को पूरा 1 साल हो चुका था। रेस्टोरेंट की मध्यम रोशनी, हल्की मौसीकी और मेज पर रखे गुलाब ज़ारा के लिए सब नया था। ज़रान उसके सामने बैठा था, उसे मोहब्बत भरी निगाहों से देख रहा था, जैसे उसकी मौजूदगी खुद एक तहफ़्फ़ुज़ हो। सनाया और उसकी जुड़वा बहन मारिया की आज बर्थडे थी, जिसे सेलिब्रेट करने के लिए वो खास रेस्टोरेंट आए थे। आपको यहाँ कैसा लग रहा है? ज़ारा ने नरमी से पूछा। ज़ारा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया। बहुत अच्छा। उन्होंने मारिया और सनाया के साथ मिलकर केक काटा और अभी वो खाना ऑर्डर कर ही रहे थे कि ज़ारा की नज़र अचानक सामने वाली मेज पर पड़ी। दिल एक लम्हे को ठटक गया। अरसलान और उसके साथ पलवशा, उसकी गोद में मौजूद 1.5 साल की उम्र का बच्चा, वो दोनों भी उन्हें देख चुके थे। पलवशा के होंठों पर वही जानी पहचानी तंजिया मुस्कुराहट फैल गई। वो जानबूझकर अरसलान के साथ उठकर उनकी मेज के करीब आ गई। वाह वाह! पलवशा ने मसनूई हैरत से उसे देखा। अरे, ताली बजाइए, ये तो बड़ा फैमिली डिनर लग रहा है। ज़ारा ने नजरें झुका ली। दिल में एक पुराना खौफ सर उठाने लगा। ज़ारा ने फौरन उसकी कैफियत महसूस की मगर खामोश रहा और अपना हाथ उसके हाथ पर रखकर गोया उसकी घबराहट को कम करने की कोशिश की थी। अरसलान ने तंज अमीज निगाह ज़रान पर डाली। तो आप हैं वो खुश नसीब। पलवशा ने आगे बात बढ़ाई। खैर, कुछ लोगों की किस्मत वाकई बहुत अजीब होती है। उसकी नजरें ज़ारा पर जमी थी। वैसे भी तुम जैसी बांझ औरत से शादी करने के लिए कोई आम मर्द तो तैयार नहीं होता। वो हंसी। 2 बच्चों का बाप होना ही चाहिए था ना, ताकि कमी पूरी हो जाए। ज़ारा का रंग फक हो गया, उंगलियां कांपने लगी। वो कुछ बोलना चाहती थी मगर आवाज जैसे कहीं दब गई। उसी लम्हे ज़रान ने कुर्सी पीछे की। वो आहिस्ता से खड़ा हुआ मगर उसकी आवाज में ऐसी सख्ती थी कि आस पास की मेजों पर बैठे लोग भी चौंक गए। बस, पलवशा चौंकी। ज़रान ने एक कदम आगे बढ़ाया। अपनी जुबान संभाल कर बात करो। अरसलान ने तंजी हंसी हंसकर उसे देखा। आप शायद जानते नहीं है, हम तो बस हकीकत। खामोश। ज़रान की आवाज में वाज़ह था। हकीकत यह है कि जिस औरत को आप बाज कह रहे हैं, वो मेरी बेटियों की जिंदगी है। पलवशा के चेहरे पर एक लम्हे को सख्ता छा गया। ज़रान ने बात जारी रखी। और हकीकत यह भी है कि मर्दान की बच्चों की तादाद से नहीं, औरत को इज्जत देने से नापी जाती है। उसने एक नजर ज़ारा की तरफ देखा, फिर दोबारा उन दोनों की तरफ रुख किया। जिस औरत ने मेरा घर जोड़ा, मेरे बच्चों को माँ दी, उसके किरदार पर उंगली उठाने का हक किसी को नहीं, खुसूसन उन लोगों को नहीं जिन्होंने उसे कभी तोड़ा हो। असान ने कुछ कहना चाहा मगर लब आ रह गए। और एक बात याद रखें, ज़रा ने आखिरी बार वार किया, मैंने इससे शादी किसी मजबूरी में नहीं की। मैंने इनका इंतखाब फख्र के साथ किया। रेस्टोरेंट में खामोशी छा गई। पलवशा ने नजरें चुराई। अरसलान का बाजू पकड़ा और तेजी से वहां से हट गई। ज़रान ने आहिस्ता से पलट कर ज़ारा की तरफ देखा। वो अब भी बैठे थे, आंखों में नमी मगर चेहरे पर वहशत सी थी। और वो उसके पास आकर बैठ गया। आप ठीक है? ज़ारा ने धीरे से सर हिलाया। जी। और पहली बार उसकी आवाज में मजबूती थी। आपने मेरा दिफा किया, उसके लिए शुक्रिया। उसके होंठ लर्ज रहे थे। ज़रान ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। आप सिर्फ अहम नहीं है, वो ठहर कर बोला, आप मेरी है। इस एक जुमले ने रेस्टोरेंट की सारी आवाजें, सारे तंज, सारी तलक यादें खामोश कर दी। और ज़ारा में एक
हिम्मत सी आ गई। रेस्टोरेंट में फैली खामोशी भी पूरी तरह टूटी भी ना थी कि ज़ारा आहिस्ता से अपनी कुर्सी से खड़ी हो गई। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे, मगर आवाज में हैरत अंगेज तौर पर मजबूत थी। वो नजरें झुकाने वाली ज़ारा नहीं रही थी। उसने सीधा अरसान की तरफ देखा, जो कि मेज पर बैठा था, लेकिन उसी की तरफ मुतवज्जा था। अब मैं बोलूंगी और दुनिया सुनेगी। अलविशा चौंक कर उसकी तरफ मुड़ी तो उसने हकारत से कहा, अब भी कुछ कहना बाकी है? ज़ारा ने उसकी बात नजरअंदाज की। उसकी नजरें अरसान पर जमी थी। 4 साल। वो जरा रुकी, अपनी सांस दुरुस्त की। 4 साल मैंने इस सच को अपने सीने में दफन रखा, तुम्हारे गरूर की खातिर, तुम्हारी मर्दानगी के नाम पर। अरसान के चेहरे पर हैरत उभरी। तुम कहना क्या चाहती हो? ज़ारा ने हल्की सी तलख मुस्कुराहट के साथ उसे देखा। यही कि कमी मुझ में नहीं, तुम में थी अरसान। मैं बाज नहीं थी। उसने उंगली अपने दिल पर रखी, बल्कि तुम नामर्द थे। फिर वशा का रंग फक हो गया। ये क्या बकवास है? ज़ारा की नजरें पलवशा पर थी, जिसके चेहरे का रंग बदल गया था। बकवास नहीं, ये वो सच है जो तुमने बरसों छुपाया। उसने दोबारा अरसान की तरफ रुक किया। तुम्हें याद है जब डॉक्टर ने रिपोर्ट दी थी, तुम मेरे साथ नहीं थे? अरसान की सांस तेज हो गई। ज़ारा तुम, मगर अब बर्दाश्त खत्म हो गई है। ज़ारा की आवाज में दर्द था, मगर कमजोरी नहीं थी। जिस बच्चे को आज तुम अपना कहकर सीने से लगाते हो, वो लम्हा भर को रुकी, वो तुम्हारा नहीं है। अरसान के वजूद में गोया जलजला सा आ गया। बकवास ना करो। पलवाशा चीख पड़ी। चुप करो, ये झूठ है। ज़ारा ने पहली बार उसकी आंखों में आंखें डाली। झूठ? उसकी आवाज का एक एक लफ्ज तीर बनकर निकला। फिर बता, वो आदमी कौन था जिसके साथ मैंने खुद तुम्हें अस्पताल में देखा था? वही जिसके गुलाब पर तुमने अरसान का नाम लिखवा दिया? पलवशा के लब लड़ने लगे। बस करो ज़ारा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ज़ारा ने सर हिलाया। अब नहीं। तुमने मुझे बाज कहा, कमतर कहा, जबकि सच ये है कि तुम किसी और के गुनाह को अरसान का बच्चा कहकर पाल रही थी। अरसान के कदम पीछे हट गए। पलवशा, ये क्या कह रही है? पलवशा के पास कोई जवाब न था। उसकी खामोशी सबसे बड़ा इकरार बन गई। तो ज़ारा ने आखिरी बार किया, और अरसान, तुम कभी बाप नहीं बन सकते, क्योंकि तुमने कभी इंसान होने की कोशिश ही नहीं की। तुमने बस इल्जाम दिया, मगर जब कि मैं 4 साल तक सहती रही, पर अब और नहीं। अरसान का चेहरा पसीने से तर हो गया। मैंने क्या किया है? वो बड़बड़ाया। वो चंद कदम पीछे हटा। पलवशा की चीख गूंजी, मगर अगले लम्हे तेजी से बाहर निकला। रेस्टोरेंट में शोर मच गया। ज़ारा वहीं खड़ी थी, आंखों में बेपनाह आंसू थे। जरान फौरन उसके पास आया, उसका हाथ थाम लिया। तुमने जो कहा वो सच था, और जरूरी भी। कोई गिल्ट महसूस ना करना। ज़ारा ने गहरी सांस ली। मैंने आज सिर्फ कहा नहीं है, आहिस्ता से बोली, मैंने 4 साल बाद खुद को आजाद किया है। कुछ राज जब जुबान पर आते हैं तो किसी को आजाद कर देते हैं और किसी को कैद कर देते हैं। वो कहकर आगे बढ़ी, लेकिन उसका सर चकराया। ज़ारा ने उसे थामा था। वो बच्चियों को घर छोड़कर से अस्पताल लाया था। ज़ारा की आंखें बंद थी, मगर सांस अब पहले से बेहतर थी। ड्रिप की बूंदें आहिस्ता आहिस्ता उसके वजूद में उतर रही थी। ज़ारान कुर्सी पर बैठा उसका हाथ थामे हुए था, उंगलियां दुआ की सूरत बंधी हुई थी। दरवाजा आहिस्ता से खुला। डॉक्टर फाइल हाथ में लिए अंदर आई। मिसेस ज़ारान की हालत अब स्टेबल है, उसने पेशेवराना लहजे में कहा, लेकिन एक बात और है जिसके लिए आप दोनों को तैयार करना चाहिए चाहता हूँ। ज़ारान चौंक गया। क्या मतलब? डॉक्टर ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ फाइल बंद की। वो बेहोशी सिर्फ जहनी दबाव की वजह से नहीं थी। उनके टेस्ट हमने एहतियातन करवा लिए थे। वो जरा रुका, फिर ज़ारान की तरफ देखा। मुबारक हो, वो हामला है। एक लम्हे को ज़ारान को यूं लगा जैसे वक्त रुक गया हो। क्या कहा? उसकी आवाज कांप गई। जी। डॉक्टर ने सर हिलाया। इब्तदाई मरना है, मगर सब नॉर्मल है। बस जहनी सुकून और खास ख्याल जरूरी है। ज़ारा की पलकें हिली। शायद उसके कान तक वो अल्फाज पहुंच चुके थे। ज़ारान फौरन उसके करीब झुका। ज़ारा, उसकी आवाज में बेयकीनी और खुशी एक साथ जलमिला रही थी। तुमने सुना? ज़ारा ने आहिस्ता से अपनी आंखें खोली। क्या? ज़ारा की आंखें नम थी, मगर लबों पर बेइख्तियार मुस्कुराहट उभरी थी। हम माँ बाप बनने वाले हैं। ज़ारा ने चंद मिनट से देखा, जैसे लफ्जों का मतलब समझने की कोशिश कर रहे हो। फिर अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे।
इस बार ये आंसू शुक्र गुजारी के थे। क्या वाकई? वो लड़ती आवाज में बोली, क्या ये भी कोई ख्वाब है? जरा ने उसका हाथ अपने दिल पर रख लिया। नहीं, ये हकीकत है, और बहुत खूबसूरत हकीकत है। जारा ने आंखें बंद कर ली और उस खूबसूरत ख्वाब को महसूस किया था। कुछ देर बाद डॉक्टर कमरे से निकल गया। कमरे में एक खुशी फैली हुई थी, ऐसी खुशी जिसमें नई जिंदगी की धड़कन छुपी हुई थी। जारा ने कमजोर सी मुस्कुराहट के साथ उसे देखा। आप जानते हैं, मैंने आज सच बोलकर खुद को आजाद किया और अल्लाह ने मुझे ये इनाम दे दिया। जारा ने उसके माथे पर हल्का सा बोसा दिया और उसे गले से लगा लिया। ये इनाम तुम्हारे सब्र का है, और वादा करता हूँ तुम्हारा ख्याल रखने में कोई कमी नहीं होगी, उसने आहिस्ता से कहा। जारा ने उसका हाथ मजबूती से थाम लिया, क्योंकि अब मैं अकेली नहीं हूँ। अस्पताल के सफेद कमरे में, जहाँ कुछ देर पहले बेयकीनी की कैफियत थी, अब एक नई जिंदगी की खामोश सी दस्तक सुनाई दे रही थी। अरसलान तेजी से पार्किंग एरिया में खड़ी गाड़ी की तरफ आया। रेस ड्राइविंग करते हुए आगे बढ़ा था। पलवशा उसके सामने आई। उसे बेख्तियार ब्रेक पर पाँव मारे। पलवशा तेजी से दरवाजा खोलकर उसके साथ बैठी। क्या हो गया अरसलान, तुम उसकी बातों में आ रहे हो? अरसलान ने गसीली निगाह उस पर डाली और गाड़ी इस कदर जोर से आगे बढ़ाई कि पलवशा की चीखें बुलंद हुई। पागल हो गए हो क्या? क्या कर रहे हो? मेरी बात तो सुनो। अरसलान ने डैशबोर्ड पर हाथ मारकर उसे चुप करवाया। गाड़ी अनजान रास्ते पर चलती रही और पलवशा उसे सफाइयां देती रही। तभी गाड़ी एक झटके से पलवशा के घर के सामने रुकी। उतरो और दफा हो जाओ मेरी जिंदगी से, ले जाओ अपने इस गुनाह की गठरी को भी। मैं मजीद तुम्हारे हाथों बेवकूफ नहीं बनूंगा। मैंने तुम्हारे पीछे हीरे को खो दिया और तुमने मेरी जिंदगी में सिवाय अंधेरे के और कुछ न पड़ा। उतरो यहाँ से। पलवशा ने खाली खाली निगाहों से उसे देखा। वो जैसे ही उतरी तो अरसान ने एक नजर उस पर डाली। मैं अपने पूरे होशो हवास से तुम्हें तलाक देता, तलाक देता, तलाक देता हूँ। पलवशा की चीखें बुलंद हुई थी। अरसान गाड़ी आगे बढ़ाकर ले गया। रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए टूट गया। पीछे सिर्फ पछतावा और अफसोस रह गया। सूरज की रोशनी अब फैल कर वापस पलटने के करीब थी। सूरज रोज की तरह शाम के वक्त जमीन को अलविदाई निगाहों से दिख रहा था। स्नाया और मारिया साहिल के करीब मिट्टी पर अभी तक अपना घर बना रही थी। जारा ने अपने 2 माह के छोटे बच्चे को थाम रखा था और दरान उसके पास बैठा ये मंजर देख रहा था। जारा, उसने नरमी से उसे पुकारा, और वो जो सनाया और मारिया को अपनी निगाहों में रखे हुए थे उसकी तरफ मुड़ी। जी जरान, 1 मिनट। उसे ये कहकर अपने 2 माह का बेटा उसकी गोद में डाल दिया। अब इसे पकड़े, मैं आपकी बात बाद में सुनूंगी। पहले मैं इन दोनों को ले आऊं, मेरे चांद के टुकड़ों को, कुछ हो ही ना जाए। ये कहकर वो आगे बढ़ी और उन दोनों का हाथ थामा। सनाया और मारिया ने उसे गोल गोल घुमाया। जरान ने दूर से ये मंजर देखकर बेख्तियार खुदा का शुक्र अदा किया। बाबा, बाबा आप भी आ जाए ना प्लीज। मारिया और सनाया ने उसे दूर से आवाज लगाई तो वो भी धीरे धीरे कदम उठाता हुआ आगे बढ़ा और उनके बराबर में जाकर खड़ा हो गया। उन दोनों ने मिलकर मिट्टी का एक घरोंदा बनाया, जिसे साहिल का पानी बिना डुबो सका था, क्योंकि वो मजबूत हाथों की कहानी थी। जारा ने उस मिट्टी के घरोंदे की लकड़ी को सहारा दिया था। ये बिल्कुल हमारे घर की तरह, बिल्कुल मजबूत, कभी न बिखरने वाला। जारा ने भीग कर इंशाल्लाह कहकर सनाया और मारिया को देखा और फिर अपने बेटे की तरह देखकर जरान की आंखों में झांका था। आपके साथ जिंदगी इस कदर खूबसूरत और हसीन होगी मैंने कभी नहीं सोचा था। कभी कभी इंसान कोयले को खोने के गम में ये भूल जाता है कि खुदा ने उसके नसीब में हीरा लिखा हुआ है। आप मेरी जिंदगी का वो हिस्सा है जिसके बाद मैं सुरखरू हुई हूँ और मैंने सर उठाकर जीना शुरू किया। जरा ने आगे बढ़कर उसके माथे पर बोसा दिया और अपने बेटे को देखकर उसे अपनी बाहों में भींच लिया। इतना खूबसूरत तोहफा देने के लिए शुक्रिया, और मेरी जिंदगी को मुकम्मल करने का शुक्रिया। उसने सनाया और मारिया को देखा, जो कि माँ की मोहब्बत के मिलने के बाद वे इंतहा